Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the biodiversity, means we discuss about the loss of biodiversity. How can they lose the biodiversity? Today we discuss a very important topic, that is the biodiversity conservations. Okay, this is a very important topic because from this topic in board examination that I ask some important questions. Okay, so first thing, why should we conserve biodiversity? हमको क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए? देर आर नंबर ऑफ रीजन्स वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. देर आर मेनी नंबर्स. On the basis of them we are said that we conserve the biodiversity. They can be grouped under three categories. और जो ये रीजन है उसको थ्री कैटेगरी में किया गया है. थ्री अंडर थ्री कैटेगरीज दैट इज प्रेजेंट ईयर. नैरो यूटिलियरियन. ओके, नैरो यूटिलियरियन फर्स्ट वन, in which discuss about the what is the importance of narrow utilitarian. Second one is the broadly utilitarian, and third one ethical issue, yeah, ethical arguments. So what is the narrow यूटिलिटेरियन? ये क्या है? ह्यूमन ड्राइव्स अ मेजर पार्ट ऑफ दियर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स. ठीक, मैक्सिमम कंपोनेंट्स विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स. Their direct benefits are countless. There are different components, just like a food. First one is food. All the food we eat comes from the plants and animals. Cereals, pulses, fruits, vegetable, milk, egg, meat. ठीक है, फूड के रूप में यूज करते हैं नैरोटिलेरियन. सेकेंड, फैट एंड ऑयल्स. दे आर ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. दोनों से हम ऑयल प्रॉफिट करते हैं, फैट्स भी ऑप्टेन करते हैं. फायरवुड्स. नियरली 2 billion persons worldwide use firewood as a source of energy for cooking and heating. Next one is the fibers. A number of plants is used as a timber in construction work, furniture, sports goods, musical instrument, etc. And some industrial products, just like a tannin, lubricants, dyes, resin, perfumes, paper, rubber, lac, etc. we are directly obtained from the plants. Drugs. Next point है, we are narrowtarians, that is the drugs. Nearly 25% of drugs being used by us are directly coming from plant. ठीक है, ये सभी ड्रग्स कहाँ से ऑप्टेन करते हैं? प्लांट से ऑप्टेन करते हैं. जस्ट लाइक राल्फिया सर्पेंटाइना है, ठीक है, स्नैप ड्रैगन है. ओके, सेंटेला स्पीसीज है, ब्राह्मी है. दे आर डिफरेंट प्लांट दैट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स. About 25,000 plants are used by native people in traditional medicines. That is clear? Many more plants of medicinal value are waiting to be explored. अभी भी कुछ ऐसे प्लांट है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू उसके अंदर है, बट दे कैन नॉट डिस्कवर्ड. That is clear? So this is the narrowly utilitarian. पहला रीजन था. दूसरा है broadly utilitarians. Biodiversity is the fundamental of ecosystem services of nature. ठीक है, नेचर के लिए ये
एक फंडामेंटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है. जैसे फर्स्ट वन दैट इज द प्रोवाइड द ऑक्सीजन्स थ्रू देयर photosynthesis activity. Plants are replenished oxygen of the atmosphere. That is clear. Amazon rainforest is the estimated to the contribute 20% of it. पूरे वर्ल्ड का 20% जो है अमेजन फॉरेस्ट के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होती है. मीन्स वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम प्लांट्स हैं. दैट इज क्लियर. Second one is the pollination. You know about the pollination is very important. Formation of seeds, cereals, fruits formations. ठीक है. तो in case of pollination, bees, bumbles, bees, butterfly, moths, reptiles, insect, birds and bats are engaged in pollination of plant, which is essential for the formation of fruit and seeds. Okay. Third one is the climate regulations. Forest or and oceans system regulate global climate. Global climate को जो मेंटेन करता है फॉरेस्ट और ओशियन होते हैं. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द एक्वाफायर. Plants cover is essential for the retention of rainwater, its percolation and storage in the aquifer and reservoir. Next, flood and erosion control. Flood और erosion ये दोनों कंट्रोल करते हैं. हाउ कैन दे आर कंट्रोल? बिकॉज जो प्लांट रूट होता है दैट इज द कैप्चर द सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, सॉइल पार्टिकल को कैप्चर किए रहेंगे तो रेनफॉल के साथ वो जो है सॉइल पार्टिकल्स या रॉक्स पार्टिकल दे कैन नॉट मूव. ठीक है, यदि वो मूव करके यदि इस रिवर में नहीं जाते हैं तो उसमें फ्लड भी नहीं आएगा. फ्लड क्यों आता है? क्योंकि उसमें वाटर के साथ क्या है, सॉइल है. और जब वो पेड़ में बैठता है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण फ्लड आता है. दैट इज क्लियर. माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट. इट नॉट ओनली dispose of wastage but also generate resources. माइक्रोबियल वेस्ट यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए. जैसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स होते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द बायोगैस. इसका यूजफुल है. ओके. बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. इन नेचर पेस्ट आर केप्ट अंडर द कंट्रोल बाय देयर नेचुरल predators. The technique is being adopted in agriculture and horticulture. ठीक है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. अब केमिकल पेस्ट नहीं यूज करके क्या हम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज करते हैं, क्योंकि यह इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता एज वेल एज दैट इज द यूजफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ. ठीक है. जस्ट लाइक ट्राइकोडर्मा स्पीसीज वी आल्सो डिस्कस इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में उसको डिस्क्राइब किए हैं. ठीक है. एस्थेटिक वैल्यूज. Biodiversity has a lot of the aesthetic and attraction values. Ecotourism is based on. ठीक है, इकोटूरिज्म ये शो करता है जैसे आप यदि गए हो प्लांटेशन बेस पे ही है. नीला कुरंजी जो था इन तमिलनाडु एरिया, देयर इज द bluish flowering acres that attract the tourist. Okay. It provides a lot of pleasure and excitement to listen to bird song, observe blooming of flowers, birds watching and wildlife watching. So this is the broadly utilitarian reasons for we conserve biodiversity. And last one is the ethical arguments. What is the ethical arguments? Every species has a intrinsic value even if it is not of any economic value to us. हर स्पीसीज की अपनी एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, वो इकोनॉमिकली यूज न होने के कारण भी वह इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी है. It is our moral duty to care for their well-being
and pass on our biological legacy in good order to future generation. ठीक है, तो ये हमारी मोरलिटी होती है कि उसको मेंटेन बनाए रखें, ठीक है, और उसको हम उसी कंडीशन में फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको हम स्टोर करके रखें या उसको उस तरह मेंटेन बनाए रखें. मोर ओवर मैनी प्लांट्स लाइक तुलसी एंड पीपल हैव रिलीजियस इम्पोर्टेंस एज वेल. ठीक है, रिलीजियस इम्पोर्टेंट है, इसको हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मीन्स इसको एक्सटिंक्ट होने से बचाना पड़ेगा. That is clear. So this is the reason for the we conserving biodiversity. That is clear. Next, how can they are conserve the biodiversities? There is the process of conservation of biodiversities. You see through the chart only first, then we discuss about one by one. This is the conservation approaches of biodiversity conserve. So you see there is two categories. One is the in situ conservation and another is the ex situ conservation. इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स ऑन साइट, मतलब जहाँ पर प्लांट है या स्पीसीज है वहाँ पे कंजर्व कर देना, प्रिजर्व कर देना, उसको हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन. ठीक है, और एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स इन विच दैट इज द आउटसाइड से हम प्लांट ला के एक पर्टिकुलर रीजन में उसको हम स्टोर करते हैं. ठीक है, वहाँ पर उसको मेंटेन करते हैं, तो उसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं. इन सिटू कंजर्वेशन में देयर आर टू एरियाज या टू पार्ट्स है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज. बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मीन्स जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, पर्टिकुलर रीजन में जहाँ प्रेजेंट हो, उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोलते हैं. प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें स्पीसीज को डिस्ट्रॉय हार्मफुल से बचाया जाता है, जैसे नेशनल पार्क है, इसमें रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी and sacred groups. This is the different protected area in which that is the we conserve the plant or species. Ex situ conservation, there are two parts, gene bank and off-site collections. Gene bank में cryopreservation, seed bank है, tissue culture है, in which that is the control या protect the gene. Okay. ऑफ साइड कलेक्शन में आपका बॉटनिकल गार्डन्स है, जूलॉजिकल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है. दिस द प्रोटेक्टेड एरियाज जो आउटसाइड से प्लांट के एनिमल को लाकर एक पर्टिकुलर रीजन में रखते हैं, वहाँ पर उसको हम केयर करते हैं. तो इस तरह के सिचुएशन को हम कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन. दैट इज क्लियर. तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? That is clear. It is the conservation and protection of whole ecosystem and its biodiversity at all levels in order to protect the threatened species. That is clear. In which we discuss about the biodiversity hot spot. तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? ऑन साइट, मतलब जिस पर्टिकुलर रीजन में प्लांट या स्पीसीज प्रेजेंट है वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करना. जैसे पहला है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट. बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज एन अप्रोच फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन. इसको वी आर कंजर्व इनसाइड द इन सिटू कंजर्वेशन. व्हाई? Eminent conservation have identified certain region for the maximum protection. This region are called biodiversity hot spots. Okay. In biodiversity hot spot, these are regions which very high level of species richness, high degree of endemism, means species confined to a region and not found anywhere else, and isolated habitat loss. Okay. तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होता है? दिस द हायर डाइवर्सिटी ऑफ द या स्पीसीज रिचनेस, जहाँ पे कोई स्पीसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाए और वो पर्टिकुलर रीजन में केवल यही प्रेजेंट हो, उसी रीजन में प्रेजेंट हो, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोलते हैं. दैट इज क्लियर.
Initially, in what 34 hot spots all over the world, पूरे वर्ल्ड में टोटल 34 हॉट स्पॉट प्रेजेंट है। 3 हॉट स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, इसमें से 3 हॉट स्पॉट इंडिया में प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, सेकेंड इंडो बर्मा एंड थर्ड ईस्टर्न हिमालयास। दैट इज क्लियर। तो इंडिया में 3 हॉट स्पॉट है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड थर्ड वन इज द ईस्टर्न हिमालयास। If all the biodiversity hotspots are put together, they cover less than 2% of the Earth land area. यदि पूरे हॉट स्पॉट स्पीसीज को एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाए तो पूरे लैंड का वो लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड को कवर करेगा, बट हार्बर एक्सट्रीमली हाई डाइवर्सिटी, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। दैट इज क्लियर। सेकेंड वन इज द प्रोटेक्टेड एरियाज। Protected areas are the specially dedicated areas for protection and maintenance of the ecological unique and biodiversity rich regions। ठीक है, प्रोटेक्ट करना जहाँ पर। प्रोटेक्टेड एरियाज आर क्लासिफाइड एज दे आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे फर्स्ट वन इज द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, दिस आर द गवर्नमेंट मेंटेन एरिया। ठीक है, गवर्नमेंट मेंटेन एरिया रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेयर एक्टिविटीज सच एज कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन आर नॉट अलाउडेड। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर उसमें वाइल्ड कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं, ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे अलाउ नहीं है, मीन्स दैट इज प्रोटेक्टेड है। और इंडिया में बात करें तो 90 नेशनल पार्क प्रेजेंट इन इंडिया। द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी स्टेबलाइज्ड इन इंडिया इन 1936, दैट इज द हिली नेशनल पार्क। जो इंडिया में सबसे पहले नेशनल पार्क बनाया गया था वो 1936 में है, और कौन है? हेली नेशनल पार्क। ओके, दैट इज क्लियर। The first national park of India was Jim Corbett National Park, which was 1936. और in case of that is the in this area that is the especially protected area है, यहाँ पर किसी तरह का एक्टिविटी नहीं होता, मतलब कल्टीवेशन या फॉरेस्ट्री नहीं किया जा सकता। सेकेंड वन इज द सेंचुरीज। व्हाट इज द सेंचुरीज? दे आर द ट्रैक्ट ऑफ लैंड विथ आर विदाउट लेक वेयर वाइल्ड एनिमल fauna can take refuge without being hunted. There are number of 448 in India. सेंचुरी जो इंडिया में है वो कितने हैं? 448. Other activities like collection of forest product, harvesting of timber, private ownership of land, tilling of land, etc. allowed here. और प्रोडक्ट के लिए वहाँ अलाउ है, लेकिन और जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड है सेंचुरी में। नेक्स्ट वन इज द बायोस्फीयर रिजर्व। व्हाट इज द बायोस्फीयर रिजर्व? These are large tract of protected land with multiple use, preserving the genetic diversity of ecosystem by protecting wildlife, traditional lifestyle of tribals, and varied plants and animal genetic resources. They have been set up under MAP program of UNESCO. There are 14 biosphere reserve in India. इंडिया में बात करें तो 14 biosphere reserve है। A biosphere reserve consists of 3 zones as shown in the below, जो डायग्राम में बताया गया है। ट्रांजिशन जोन होता है, बफर जोन है, कोर एरिया है। ठीक है,
यू सी ये 3 जोन है, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन एंड कोर एरिया. ओके. इन केस ऑफ ट्रांजिशन जोन्स देर इज द ह्यूमन सेटलमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं. बफर जोन प्रोटेक्टेड एरिया है. कोर जोन में ये पूर्ण रूप से प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर किसी तरह की एक्टिविटी बैन है. मैप प्रोग्राम जो है या मे बी मैन प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज एन इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को. ठीक है. स्टार्टेड इन 1971 बट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1986. 1971 में स्टार्ट किया गया था लेकिन इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1986 में. मैप स्टडी ह्यूमन इन्वायरमेंट, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड पोल्यूशन ऑन द बायोटिक एंड एबॉटिक इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर. सैक्रेड ग्रुप्स, दीज आर स्मॉल ग्रुप्स. नेक्स्ट जो है आपका सैक्रेड ग्रुप्स. सैक्रेड ग्रुप्स क्या है? These are the small groups of forest with special religious importance in the particular culture and also of the mythological importance. ठीक है. पर्टिकुलर रीजन में जो स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं उसका इंपॉर्टेंस भी है. दिस आर अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन एंड इंक्लूड अ नंबर ऑफ रेयर इंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज. और इस एरिया में रेयरली ही इंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं. Sacred groups are found in the Khasi and Jhensia hills in Meghalaya. इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है. Khasi and Jhensia hills in Meghalaya, Aravalli hills of Rajasthan, Western Ghat region of Karnataka and Maharashtra, and the Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. These are protected by native peoples as a part of cultural tradition. In Meghalaya, the sacred groups are the last refuge for a large number of rare and threatened plants. Okay. And what is the Ramsar sites? These are the wetland designated as the internationally important under the Convention on Wetland held at Ramsar Iron in 1971 for the conservation and wise use of wetland. The wise use of wetland is defined as the maintenance of their ecological character achieved through the implementation of the ecosystem approaches within the context of sustainable development. It means wise use of the wetland and their resources for the benefit of humankind. There are 26 Ramsar sites in India. इंडिया में 26 रामसर साइट हैं. Some of these are अस्थामुडी वेटलैंड केरला में, सांभर लेक राजस्थान में, चिल्का लेक उड़ीसा में, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में. दिस इज द डिफरेंट protected area are present which are included inside the in situ conservation. Clear हो गया in situ conservation? Okay, second one is the ex situ conservation. Ex situ conservation means off-site. Means this approaches involve placing the threatened animals and plants in special care units for the protection. Ex situ conservation includes off-site collection and gene banks. Off-site collection में क्या है? फर्स्ट वन इज द ऑफ-साइट कलेक्शंस. ऑफ-साइट कलेक्शन मतलब ऑफ-साइट मतलब बाहर से जो लाके कलेक्ट करके हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं. दे आर लाइव कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज इन बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क. ठीक है, पता होगा बॉटनिकल गार्डन में बाहर से प्लांट ला के स्टेबलाइज करते हैं, उसको ग्रोथ कराते हैं. उसके जूलॉजिकल पार्क में एक पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट टाइप के स्पीसीज जो एनिमल्स हैं उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सफारी भी इस तरह का एक पार्क है. इन इंडिया में बात करें 355
parks are present where animals which are become extinct in the wild are continued to be maintained, and 35 botanical gardens where plant species are protected. ठीक, तो इंडिया में 355 पार्क है जो एनिमल के लिए प्रोटेक्टेड के लिए बनाया गया, और बॉटनिकल ओनली 35 बॉटनिकल गार्डन्स प्रेजेंट है जहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया गया है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द जीन बैंक. These are the place where the protection and maintenance of gametes is done by the stocking of viable seeds, tissue culture, and frozen germplasm with the whole range of genetic variability. These are follow. First one is the gene bank. Gene bank क्या है? These are the place where the protection and maintenance of gametes, जिसमें हम protection of gametes को protect करते हैं. इसमें पहला आपका seed bank. The storage of different genetic strain of commercially important plants in the form of seeds is one of the most widespread and valuable एक सेट ऑफ अप्रोचेज ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. ठीक है, सीड जो प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उसके सीड को प्रोटेक्ट किया गया है उस फॉर द फ्यूचर के लिए. टिश्यू कल्चर्स, यू नो व्हाट द टिश्यू कल्चर्स. ऑक्राइड, ऑक्राइड क्या है? प्लांट्स विद द recalcitrant seeds are grown in the orchards where all possible strains and varieties are maintained. फॉर एग्जाम्पल जैसे लीची है, ऑयल पाम है, रबर है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज द टिश्यू कल्चर. इट इज कैरी आउट द थ्रू द कैलस फॉर्मेशन, एम्ब्रॉयड pollen grain, germ culture and shoot tip culture for those plant which are either seedless, have recalcitrant seeds, viable seeds, progeny, or where clone is to be maintained. We also discussed about the tissue culture in previous slides. Okay. Next one is the cryopreservation. It is the method of vitro conservation in liquid nitrogen at temperature of minus 196 या 196 डिग्री सेल्सियस टू नॉर्मली जो होता है -130 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. इन अ कंट्रोल्ड रेयर फ्रीजर्स फॉर वेजिटेबली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स एंड स्टोरिंग अदर बायोलॉजिकल मटेरियल. ठीक है, इसमें विट्रो कंडीशन में लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं. दैट इज क्लियर. दिस द क्रायो प्रिजर्वेशन. एंड नेक्स्ट दैट इज अनदर इज द process is the international initiatives. Biodiversity conservation is collectively responsible to all the nations. सबकी ये सभी नेशन की रिक्वायरमेंट है मेंटेन करने के लिए. सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज held in the Rio de Janeiro in 1922 called the upon all the nations to take initiate in the biodiversity conservation. री डी जेनेरियो में किया गया था. अर्थ समिट डे के नाम से उसको जानते हैं. कब किया गया था? 1992 में किया गया था. इन जिसमें सभी कंट्री इनिशिएट किए थे फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए. इन अ फॉलो अप वर्ल्ड समिट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका. इन this 190 countries made commitment to significantly reduce the current rate of biodiversity loss of global, regional and local level by 2010. ठीक, इसमें ये डिसाइड किया गया था 2010 तक जिस तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको कम करना, रिड्यूस करना था. ENT is the 2012 the United Nations Conference on Sustainable Development was again held at Rio and is called the Rio Plus 20 on Rio Earth Summit 2012. Means for the protection of the biodiversity. ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको अर्थ समिट जो पहला किया गया था rio de Janeiro में 1922 में, और अब
कब किया गया? 2012 में, जिसमें 190 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए थे एंड दे promise that is the reduce the losses of biodiversity. Okay, if you like this video, then subscribe my channel. Thanks for watching the videos. Thanks.